Hello and a very warm welcome. You're watching an India Today special broadcast. We will do a deep dive into the exit poll numbers put out not just by Axis My India for the India Today group, but looking also at all the other major pollsters as well. With us on this broadcast will be key newsmakers, people who've been involved in the battlefield and have been tracking these numbers very, very closely. I want to start by putting out first and foremost the Axis My India, India Today exit poll data for Uttar Pradesh. Remember, Axis My India projects a sweeping victory, an astonishing victory for the BJP in UP. Axis My India says that when votes are counted, the BJP could end up with between 251 to 279 seats. That is the highest margin that any party would have got in Uttar Pradesh since the 1985 assembly elections. Remember, in 1985, N.D. Tiwari led the Congress to 269 seats. Since then, no party has crossed 250. The maximum was the Samajwadi Party, which picked up 224 seats in the last election. So here's the seat share projection for Uttar Pradesh. The BJP projected to go up from 47 seats in 2012 to up to between 251 to 279 seats in this election. That is an astonishing figure if that were to be correct. The Samajwadi Congress alliance expected to crash from a cumulative of 261 in 2012 to between 88 to 112. So the alliance with the Samajwadi Party, alliance with the Congress not helping the Samajwadi Party at all. The BSP expected to crash from 80 seats in the last elections to between 28 and 42 in this election. Very difficult, if this number is correct, for Mayawati to hold her party together going into the future. Others between 6 and 16, there were 9 in the last election. Let's take a quick look at the vote share percentages for Uttar Pradesh. The BJP has more than doubled its vote share from the 2012 assembly elections. Remember, it was 15% in 2012. Axis My India projects that figure could go up to 36%, which is down from the 42% of the Lok Sabha elections, but still enough in a triangular contest to ensure that they get across the hump stylishly and with comfort. The Samajwadi Party, if you look at the cumulative vote share of the Congress and the SP from 2012, it was 43%. That's now expected to crash to 30%, raising serious questions about whether the Congress once again proved to be a liability for the alliance. Like was the case with the DMK in Tamil Nadu, the Congress not adding much to the kitty. The BSP tally expected to crash from 26% in 2012 to 22% in 2017. Others down from 16 to 12. The exit poll done by Axis My India for India Today suggests a sweeping victory for the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. If this data proves to be correct on counting day, the man who would be front runner to be the Chief Minister of India's most populous and electorally sensitive state is the State Unit Chief of the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya. Keshav Prasad Maurya is now joining us live and exclusive on India Today. Maurya Sahab, स्वागत है आपका India Today पे. I want to begin by asking you about what you're making of the exit poll data put out by Axis My India for India Today, suggesting that your party, the BJP, could win between 251 to 279 seats in Uttar Pradesh. मैं आपके सर्वे का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि आपने जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का निर्णय अभी मतपेटिकाओं में बंद है, ईवीएम मशीन के अंदर बंद है, उसको आपने लोगों को बताने का काम किया है। और मैंने जो लगातार चुनाव अभियान के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पे जाने का मौका मिला, उसमें मैंने यह पाया है कि शायद जो आपने नंबर हमको दिया है, इससे भी बहुत ज़्यादा नंबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया था, जनता का समर्थन सपा बसपा से मुक्ति पाने के लिए भाजपा के लिए था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, इस सरकार के माध्यम से जो अनेक गरीबों के हित में, किसानों के हित में
गांव के विकास के लिए अनेक जो काम हुए उसका बड़ा प्रभाव लोगों के अंदर पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इसके कारण से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। से मौर्य साहब, अगर नंबर वही होते हैं जो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो आप जीत की वजह आप क्या मानेंगे? आप किसको क्रेडिट देंगे आपके हिसाब से? अगर इस तरह की जीत बीजेपी की होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर विजय होगी तो मेरा सर्वोच्च नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्रेय होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को श्रेय होगा और उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता मतदाताओं को इसका श्रेय होगा, जिन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास 2014 के बाद फिर से जताते हुए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होकर के कमल खिलाने का काम किया है। माननीय श्री अमित शाह जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अनेक अभियानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जिन्होंने लगभग 10 महीने से लगातार जनता के बीच में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके, जनहित के लिए संघर्ष करके जो अपना स्थान बनाया था, वह स्थान बनाने के कारण जो हमको वोट मिला है। जो किसान उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार की प्रताड़ना का शिकार है, जो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार, जिसके शासन में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बनी, पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन उसको पूरी तरह से सपा का तंत्र बना करके उसका दुरुपयोग करने का काम किया, गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया। इसके कारण लोगों में बड़ी नाराजगी थी। महिलाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। तो ये सारा जो हमने संघर्ष किया सपा के गलत कार्यों के विरोध में, उसके कारण से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और मेरे पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं के दिन रात परिश्रम का परिणाम। खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश के कास्ट डेटा को देखते हैं, खास तौर से नॉन ओबीसी, नॉन यादव ओबीसीज को अगर हम देखते हैं, तो डेटा ये दिखाता है कि आपका प्रोजेक्शन, अपना दल से आपका टाई अप, ईस्टर्न यूपी में राजभर का साथ में आना, खास तौर से नॉन यादव ओबीसीज का बीजेपी के पक्ष में एकजुट होना, कंसोलिडेट होना, वो इस जीत का एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। निश्चित तौर से आपकी बात से मैं सहमति जता रहा हूं और उत्तर प्रदेश के अंदर एक भ्रम फैलाया था सपा बसपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर के कि भारतीय जनता पार्टी केवल अगड़ों की पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग का ध्यान रखती है, सबका साथ सबका विकास। वो चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित वर्ग के हों, चाहे अगड़े वर्ग के हों, जिनके जीवन में कोई संकट है उस संकट को दूर करना और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करना, ये भाजपा का सदा से प्रयास रहा है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है कि पार्टी अपर कास्ट पार्टी और ट्रेडर होने की अपनी इमेज को शेड करते हुए एक नई इमेज बनाए। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि इसी स्ट्रैटेजी के साथ 2019 से पहले नॉन ओबीसी यादव्स को दिखाने के लिए कि आपने हमें समर्थन दिया, हम भी आपको फायदा पहुंचाएंगे, स्ट्रैटेजी के तहत आपका उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक तो ये कहूं कि अपर क्लास जो आप सब प्रयोग करते हैं, इसको कृपया करके बंद कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 14 राज्यों में सरकार का हिस्सा है या तो हमारी सरकार है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जाति के आधार पर नहीं बनते, वह कार्यकर्ता के आधार पर बनते हैं जो उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में इसका फैसला कोई प्रदेश का अध्यक्ष नहीं करता है, यह हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, विधायक दल है। अब यह निर्णय उनको लेना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे जो प्रदेश के अध्यक्ष के नाते देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर सौंपी, मैं बहुत साधारण परिवार से था और मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। मैं पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व के प्रति आभार भी जताता हूं और उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है तो यह मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात तो है ही। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस समय प्रसन्नता से भरा हुआ है और नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता पे था, है और आगे भी रहेगा। कैंपेन के दौरान बहुत चर्चा डीमोनेटाइजेशन की हुई, चर्चा हुई कि किस तरीके से ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो नाराज है बीजेपी से, लेकिन आखिरकार एग्जिट पोल का डेटा ये दिखा रहा है कि 64% ऑफ द बनियाज इन उत्तर प्रदेश आर स्टिल सजेस्टिंग दैट दे वुड वोट फॉर द बीजेपी। यानी कि चोट तो लोगों को पहुंची, थोड़ी नाराजगी भी थी, लेकिन ये पोल में आपके खिलाफ नहीं गया, आपको नुकसान नहीं हुआ डीमोनेटाइजेशन का। देखिए, नोटबंदी के कारण से देश में कोई नाराज नहीं है। नाराज वो लोग हुए
चाहे वो सपा के लोग, चाहे बसपा के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग, जिन्होंने 60 साल तक देश को लूटा, जिन्होंने 14 साल प्रदेश को लूटा, ऐसे लूटने वालों ने, भ्रष्टाचार करने वालों ने नाराजगी जताई थी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रथम दिन से थी। सारे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के, पूरी कोशिश किए नोटबंदी के बाद कि देश में दंगा भड़क जाए, लोग सड़कों पर आ जाएं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं भारत की जनता का, प्रदेश की जनता का, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती के साथ वो खड़े रहे कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में लिया है, वो गरीब के हित में लिया है। जो पाकिस्तान नकली नोटों की फैक्ट्री चलाता था, उस नए नकली नोट की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लिया है। जो पाकिस्तान नकली नोट के बल पर भारत में आतंकवाद फैलाता था और पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता था, उसको चोट पहुंचाने का काम किया। इसलिए देश मोदी जी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी इंडिया टुडे मैगजीन के एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा भी हैं। अगला सवाल राज चिंगप्पा आपसे पूछेंगे। गो अहेड राज। मौर्य जी नमस्कार। जी अगप्पा जी, नमस्कार अगप्पा जी। I was curious as to एक तो what are the key factors you think that is giving BJP such a major if our exit polls to be believed such a majority, और दूसरी, if you saw Akhilesh Yadav ji's campaign, he had focused on development, and what is the counter that you felt people didn't believe him and that's why you all are getting the votes? What is the key issues that you found in UP that actually determined the outcome? अखिलेश यादव जी का जो डेवलपमेंट था, जो विकास था, उनका केवल विज्ञापन पर था, अखबारों में था और टेलीविजन पर था। जमीन पर उन्होंने कहीं कोई विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र बहुत मजबूत था। हमने 1,40,000 बूथ की कमेटियां गठित की। हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे संपर्क करने का काम किया। हमने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन किए, हमने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किए, हमने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन किए, हमने व्यापारियों के सम्मेलन किए, हमने महिलाओं के सम्मेलन, यूथ के सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीने से लगातार जनता के बीच में अपनी संगठनात्मक दृष्टि से भी उपस्थिति दर्ज कराई। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब भी कोई गलत काम किया, भले लाठी खाना पड़ा हो, हमें जेल जाना पड़ा हो, सपा के अनाचार के खिलाफ, इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस सरकार के द्वारा ध्वस्त कानून व्यवस्था कारण घटित घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने ही लड़ाई लड़ने का काम किया। और जनता 14 वर्षों से सपा बसपा के सरकारों के काल में इतना त्रस्त हो चुकी थी कि उसे मुक्ति चाहिए थी सपा बसपा से, और मुक्ति के लिए एक मार्ग था माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। और लोगों ने भाजपा का साथ दिया है, भाजपा को आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को आश्वस्त भी करना चाहती है, हम एक ऐसी सरकार देंगे जिस सरकार को में सुशासन होगा, जिस सरकार में भ्रष्टाचार से मुक्त विकास होगा, जिस सरकार में दुरुस्त कानून व्यवस्था होगी, जिस सरकार में बेरोजगारों के रोजगार के लिए अवसर पैदा होंगे, जहां 24 घंटे बिजली होगी, जहां किसानों के उपज की खरीद की एक उचित व्यवस्था होगी, जहां महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। ऐसे अनेक कामों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त भी करना चाहते कि हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो जनता से वादा किया है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बड़े बहुमत से बनने जा रही है। और सरकार बनने पे हम अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने का काम करें। Maurya ji, और एक प्रश्न है, one of the criticisms from even within your own party was that you had not given representation to the Muslim community, which has quite a substantial number in Uttar Pradesh. Is there any particular reason you didn't give them the representation? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन केंद्र में सरकार बनी, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हमने टिकट नहीं दिया, यह सच है। इसलिए नहीं दिया कि हम गिनती गिनाने के लिए देने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारा मुस्लिम कार्यकर्ता कोई जीत करके नहीं आने वाला था तो हमने टिकट नहीं दिया है। लेकिन मैं सपा बसपा से आज भी सवाल करना चाहता हूं कि हमने नहीं दिया है, लेकिन 15% आबादी को आपने 100 से अधिक टिकट क्यों दिए? आप किनके टिकट, पिछड़ों के टिकट काटे, दलितों के टिकट काटे, किनके टिकट काट करके देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं था, हमने नहीं दिया है। लेकिन हमें इसकी कोई हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। हम सबके साथ सबके विकास, सबके उत्थान के लिए काम करने वाले हैं। ये लोग कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का उत्थान करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, माताओं बहनों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए समर्पित पार्टी।
Mr. Maurya, a lot of people in the BJP from Uttar Pradesh are increasingly saying that because your candidature as state unit chief has helped rally the non-Yadav OBCs, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ आपके प्रोजेक्शन से, इसलिए आपका हक बनता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो आपकी उम्मीदवारी होनी चाहिए चीफ मिनिस्टरशिप की। लेकिन कई जो आपके विरोधी हैं, कुछ पार्टी के भीतर कुछ पार्टी के बाहर, वो कहते हैं कि, मेरी बात सुन लीजिए, कुछ आपके विरोधी पार्टी के भीतर और बाहर कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल लाइटवेट है, एक बार एमएलए रहे, पहली बार एमपी बने, इनकी यूपी जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट, जो इतना बड़ा स्टेट है, ब्राजील से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, इनका पॉलिटिकल कद इतना नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर बन पाए, बन भी गए तो संभाल नहीं पाएंगे। जो भी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, मैं उनकी चर्चा पर कोई उस पर उत्तर दूं इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इस विषय को लेकर के ना चर्चा करना है, ना मेरा कोई इस प्रकार का दावा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ विधायक दल होगा, जो पार्टी का फैसला होता है उसके हिसाब से जिस नाम को पार्टी फाइनल करेगी उस नाम के साथ केशव प्रसाद खड़ा रहेगा। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की अगर 2017 में विजय हुई है और हम बड़े अंतर से जीत करके आएंगे तो 2014 की तरह 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार 73 नहीं 80 के 80 कमल के फूल खिला करके डालना, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरे सवाल से बच रहे हैं, से मुक्त हो, गुंडा राज से मुक्त हो, सर अपराध से मुक्त हो, आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। क्या आप, चलिए फैसला तो पार्टी को करना है, मोदी जी को करना है, अमित भाई को करना है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आप में वो मादा है, आप में वो दमखम है कि अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप यूपी का अच्छा सीएम बन सकते हैं कि नहीं? आप राहुल जी जो मुझसे आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो मैं बता भी नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा ध्यान यूपी में चीफ मिनिस्टर कौन होगा इधर है ही नहीं। यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा जिनको निर्धारित करना वो तय करेंगे। केशव प्रसाद का लक्ष्य है कि 300 से अधिक कमल के फूलों की माला मैं अपने नेतृत्व को समर्पित कर सकूं, यह मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर ही मेरा ध्यान लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन के जरिए एक फंडामेंटली कोई नेतृत्व करने वालों का अभाव नहीं है, एक फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है बीजेपी की कि पार्टी पहले अगड़ों की पार्टी, अपकाश की पार्टी, ट्रेडर्स की पार्टी माना जाती थी, अब आप एक नॉन यादव नॉन मुस्लिम रेनबो कोलिशन ऑफ हिंदू कास्ट्स ये आपने खड़ा किया है। क्या आपको लगता है कि एक उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरल डायनामिक्स को पूरा रिवर्क किया जा रहा है इस इलेक्शन के जरिए? राहुल जी, मैं आपको बता दूं, ये जो अपर कास्ट की पार्टी बीजेपी है, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम सपा बसपा कांग्रेस ने मेरे राज्य के गरीबों को भ्रमित करने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली आने से रोकने के लिए किया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के और प्रदेश के गरीबों के जीवन में खुशी का एक आशा का केंद्र बन गए हैं। जिस प्रकार से अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए उन्होंने समर्पित योजनाएं लाने का काम किया है, इससे सपा बसपा कांग्रेस के लोग घबरा रहे हैं कि अरे ये पिछड़ा वर्ग, ये दलित, ये मोदी जी के साथ क्यों जा रहा है, ये तो अगड़ों की पार्टी थी। भाजपा के साथ अगड़े भी सदा थे, पिछड़े भी सदा थे, अनुसूचित वर्ग के भाई बहन भी सदा थे, लेकिन सपा बसपा ने इस प्रकार का भ्रम फैलाने का कांग्रेस के अगुवाई में प्रयास किया था, जो जनता को अब सच मालूम हो गया। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सबको पता चल गया है कि भाजपा में कोई किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, लेकिन छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा से बड़ा सम्मान भाजपा में ही मिल सकता है। उसका साक्षात उदाहरण मैं स्वयं इस समय भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े राज्य का अध्यक्ष इस नाते बैठा हूं। कम आयु में ही मुझे पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, विधायक बन करके पहुंचा, मुझे पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया। मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको पार्टी में बहुत बड़े बड़े सम्मान देने का काम किया है, और वह जाति देख करके नहीं, वह कार्यकर्ता पार्टी के लिए किस प्रकार से समर्पित है, किस प्रकार से काम करता है, यह देख करके पार्टी सम्मान देने का काम करती है। और देश के अंदर कई राज्यों में हमारे पास उदाहरण है। इसलिए इस प्रकार का भ्रम फैलाने का जिन लोगों ने काम किया, उनकी दुकानें बंद हो गई। कल श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भाजपा अगर बहुमत में आएगी तो उसे रोकने के लिए हम बुआ के पास समझौते के लिए जा सकते हैं। मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपने मतगणना से पहले पराजय स्वीकार कर लिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। यह सच पहले स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन कल तो आपको बुआ याद आ रही थी, लेकिन 11 तारीख को आपके साथ आपके दोस्त को हो सकता है नानी भी याद आ जाए। ओके, राज हैज अ question for you. Maurya ji, if you become the Mukhyamantri,
what would be your key agenda? I mean, what would be the main points that you think you would focus on in the first few months of your tenure? भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र आपने देखा होगा। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने विकास का रोड मैप उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा है और उसी रोड मैप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यूपी के विकास करने का काम, यूपी में सुरक्षा देने का काम, यूपी में रोजगार देने का काम, यूपी के गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जिसे केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल तय करेगा, उसके द्वारा लोक कल्याण संकल्प पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया जाए। Last question, Mr. Maurya, before we let you go. You were in the Vishwa Hindu Parishad for a decade and a half before you came to the BJP. You were part of the Ram Mandir campaign. Will the Ram Mandir on the ground, outside of what's happening in the Supreme Court, be a priority for the next government in BJP, whoever may run it? लोक कल्याण संकल्प पत्र आपने शायद हमारा देखा नहीं है। हमने उसके माध्यम से भी ये कहा है, श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में भाजपा सदा से थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्द आए, भव्य मंदिर का निर्माण हो, और यह बात हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी कही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिहार में भी कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, कुछ जगह ने तो पटाखे भी चला दिए, एंड में उल्टा पड़ा। ऐसा तो नहीं कि होली के कलर्स बहुत सारे खरीद लिए और एंड में उल्टा ही हो गया? इसकी चिंता है आपको? आप चिंता मत करिए, आप कोई चिंता नहीं है। मुझे अपने कार्यकर्ता के परिश्रम और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है। आपने हमारे जो नंबर दिखाए हैं, मैं इंडिया टुडे ग्रुप आज तक का सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सच के काफी करीब हैं। लेकिन जिन चैनलों ने उस कम करके भी दिखाया है, उनको कल मैं कह सकता हूं कि 11 बजे ही उनको यह विचार करना पड़ेगा कि हमने जो सर्वे किया था वह रिपोर्ट कैसे, मतलब उसके विपरीत भाजपा इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रही है। भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नंबर से यूपी जीतने वाली है। और यूपी जीत करके हम 2019 की तैयारी में लगने वाले हैं। I'm going to leave it there, Keshav Prasad. You're watching the Uttar Pradesh War for Thrones. We're looking very carefully at the Axis My India Today exit poll data. We're starting with Uttar Pradesh. I'll show you now how the worm lines have moved in Uttar Pradesh. And if you see the exit poll numbers and compare them with previous elections and with previous opinion polls, it seems the BJP is fairly close to where it was at the peak of Modi's popularity in 2014 during a Lok Sabha election. To be able to replicate that in an assembly election would be quite an incredible feat if that were to happen. So you saw the BJP data on your screen, going up from 47 seats in 2012 to about 251 to 217 according to the exit poll data. What this possibly shows, Sharad Pradhan, is that it's not just the caste cauldron. We've been focusing on the caste dynamics, which is important, but the coming together of various Hindu castes could possibly suggest a pro-Modi vote for aspiration which goes beyond traditional caste arithmetic. Absolutely. That is what happened in 2014. Modi was able to cut across caste lines, age lines, and bring together, I mean, he projected himself, he was taken as somebody with an aura, a man who could change India. And this shows, if this data is correct, that Modi magic continues to prevail. And even in this, which a lot of us didn't think, law of diminishing returns, one thought, and there were so many other things, but probably because of the failures of other political parties also, certain failures of Akhilesh also. Akhilesh may have projected himself as a development man, but his development was limited to Lucknow. The Samajwadi Party and the Congress, 28% in rural Uttar Pradesh, but 34% in urban Uttar Pradesh. That would suggest, Ashok Malik, that 6% extra is possibly the urban appeal of Akhilesh Yadav. So he did have an urban appeal to some extent, but not enough to swing the elections. See, there are 2 points I'd like to make here. We keep talking about to 2014 and a vote beyond caste. The fact is, UP voters have demonstrated this over and over again. All these parties have strong caste and community vote banks, vote bases, there's no question. But there is a floating voter who could be urban, could be upper caste, could be non-other OBC, who has shifted
we could be seeing a Hindu consolidation because of all of what we saw, Qabristan, Shamshan. That's one way of looking at it. That's what some people will say, that the Muslims polarized towards the SP, the non-Muslims. There was a Hindu rainbow coalition that Modi and Shah were able to stitch. That's one way of looking at it. The second way would be that traditional caste arithmetic and the traditional analysis about caste is breaking, and we're seeing the coming together of at least a Hindu aspiration vote beyond traditional caste lines. What would be your assessment? I think the latter. And the more important reason is to understand why does the Hindu aspirational caste or class, whatever you want to call it, come together. If you see, it's not just the MBCs, it's not just the non-Jata Dalits who've come together to vote for the Bharatiya Janata Party. It's also the poor amongst the upper caste. If you look at the Purvanchal wave that has built up, a large part of the labor class, a large part of the lower middle class that is really stuck in place. Modi has, in a sense, hit out at the failings consecutively of the Mayawati government, of the Akhilesh government. He's hitting out, for example, at the urban educated but unemployed youth and the structures of educational mafia, the Nakal mafia. Don't underestimate these things. So in a sense, in building the Rainbow Coalition, he's not just had an Hindu appeal, he's also had an aspirational appeal that if you're stuck in place, here's a party that can deliver. If this data is correct, to help the BJP get the kind of traction it's got, that the other communities felt neglected, and the BJP again and again highlighted or charged that there was appeasement of certain communities, certain groups, that seems to have found some resonance by people feeling that yes, it was indeed that way. Definitely, Rahul, you're absolutely right, and you have hit the nail at the right place. Let me tell you, the theorem is if you keep on discriminating against a particular group, then the group consolidates finally to see to it that they unseat the ones whom they had elected in the previous election. And Mr. Modi was absolutely right, because he spoke very candidly. He picked up from the ground what the people were thinking, and he spoke their mind. Because in Uttar Pradesh, anyone who stays in Uttar Pradesh goes to a police station, they realize that the police stations in Uttar Pradesh have become breeding grounds of discrimination. They have in fact been converted into offices of Samajwadi Party. I want to go across first and foremost to Om Mathur, the man who's led the BJP's charge in Uttar Pradesh, the General Secretary. He comes from Gujarat, has been in Uttar Pradesh for more than a year now, spending all his time over there. Om ji Mathur, आप तो बड़े खुश होंगे, रात को नींद आई भी इन एग्जिट पोल नंबर्स को देख के? क्या ये एग्जिट पोल नंबर्स आपके भी अनुमान से ज्यादा हैं? नहीं, हमारे अनुमान से, मैं देखिए एग्जिट पोल की अपनी एक साइंस होती है राहुल, और ये मान के चलिए कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, 2 साल से जिस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ काम किया है, उससे निश्चित हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम जीतने वाले हैं। और आज कल भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जिट पोल ने ये प्रूफ सिद्ध कर दिया कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। So essentially, Om Mathur, if the BJP were to do well, like this poll is saying, the fact that you've put together a rainbow coalition, including the non-Yadav OBCs, क्या आप मानेंगे कि वो एक बड़ी वजह होगी अगर ये एग्जिट पोल का डेटा सही निकलता है तो? देखिए, सबसे बड़ी वजह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले जो 2.5-3 साल में जो गरीब कल्याण की योजनाएं जनता के बीच में दी, तो ये जो सारी आप बता रहे हैं जातीय समीकरण, इनके सबके मन में एक भाव पैदा हुआ कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री की योजनाएं मेरे गांव, घर, झोपड़ी तक पहुंचे। और क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई गरीब कल्याण की सरकार केंद्र में आई है, और इसलिए ये जो जितनी भी जातियाँ थी, मैं आपको बताता हूँ, आप कल का इंतजार करिए, बाकी जो छूटी जाति भी बहुत अच्छी मात्रा में हमको वोट मिला है। और कुल मिलाकर के हमने जो 2 साल मेहनत की उनके बीच में, आप कल्पना कर सकते हैं, खाली उज्ज्वला योजना से उत्तर प्रदेश में हमारी 55 लाख गरीब माताओं को हमने रसोई गैस दी है। ये कुल मिलाकर के ऐसी सारी योजनाएं थी, चाहे वो जनधन योजनाएं हो, चाहे वो यूरिया खाद के को एकदम से खुल के लोगों तक पहुंचाना हो, चाहे वो एम्स का गोरखपुर का मामला हो, चाहे वो गोरखपुर के बंद पड़े 27 साल का कारखाने का शुरुआत करना हो, ये योजनाएं जो थी, इसलिए गांव गरीब कल्याण की योजनाएं थी। ये सरकार ने सिद्ध कर दिया एग्जिट पोल के माध्यम से कि केंद्र की सरकार गरीब कल्याण की सरकार है। जी माथुर, इस डेटा से एक और चीज निकल के आती है, वो ये कि कांग्रेस से अलायंस करना समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित हुआ। द डेटा एक्चुअली शोज दैट इफ
You look at the last opinion poll done by Access My India for the India Today group right before the first phase of elections. The Samajwadi Party at that time had momentum. Two things seem to have gone against Akhilesh. One, the fact that he went and embraced once again characters like Shivpal Yadav, his uncle, those in the Mulayam camp who people had a negative perception about, people like Gayatri Prajapati, and therefore they said, okay, so what's new? If he's going back to these people, what will be different if Akhilesh gets elected the next time? The other thing that seems to have worked against Akhilesh Yadav, despite his relatively positive pro-development image, is the fact that he had the Congress with him. Now questions will be raised going forward, oh Mathur, whether the Congress is a liability. It happened in Tamil Nadu where the DMK felt in the end that they gave too many seats. आपको लगता है कि अगर ये पोल का डेटा सजेस्ट करता है कि अगर अखिलेश अकेले लड़े होते तो आपको ज्यादा टक्कर देते, क्या आप ये मानते हैं? अखिलेश by himself would have been a tougher competitor? नहीं देखिए, पहले दिन से अखिलेश डिफेंस में थे। आज से 6 महीने पहले अखिलेश जी ये बोल रहे थे कि मेरा काम बोलता है, मैं मेरे विकास के आधार पर सत्ता में आऊंगा पुनः। लेकिन जैसे जैसे हमारी परिवर्तन यात्राएं चली, अखिलेश जी को महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं इनसे टक्कर ले पाऊंगा, इसलिए उन्होंने ऐसी कमजोर पार्टी की बैसाखी ली। मैं तो पिछले 15 दिन से कह रहा हूं कि ऐसी कमजोर बैसाखी उन्होंने ली जो पूरे रास्ते भी शायद चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, और इसलिए उनका धीरे धीरे हर दृष्टि से हमारा काम जैसे जैसे फैला, और जिस प्रकार से इन्होंने 5 साल में कुशासन किया है उत्तर प्रदेश में, हमने खाली एक मेल आईडी दी थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जहां जहां भूमि कब्जा किया है वो हमको भेजे। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी को अपने वर्कर्स मीटिंग में कहना पड़ा कि जमीन कब्जा करने से आप सत्ता में नहीं आओगे। इसका मतलब हमने जो कहा वो सही निकला। और ये जो पिछले 4 महीने से उन्होंने एक ड्रामा रचा परिवार के झगड़े का, ये मात्र ड्रामा था। वो किसी तरह से अपना भ्रष्टाचार, अपना कुशासन छिपाना चाहते थे, इसलिए ये ड्रामा रचा। और फिर जो जिसकी बैसाखी का सहारा लिया, आप कल्पना करिए, कांग्रेस जिसको नेता बना के भेजती है वो नेता जाने का मन नहीं, और चुनाव आते आते वो नेता ही, दिल्ली बेस्ड नेता ही अपने लीडर के बारे में क्या बोल जाता है। तो ये क्यों गठबंधन किया? वो उनकी कमजोरी थी, मानसिकता थी। और कल का बयान, पहले चाचा बोल गए कि हार होगी तो अकेले अखिलेश की नहीं होगी, और फिर अखिलेश बोल गए कि अगर मुझे मजबूरी हुई तो मैं बुआ जी से भी हाथ मिलाऊंगा। तो अब बबुआ बुआ सब इकट्ठे होने वाले हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि मोदी जी का नेतृत्व तो पूरे देश ने स्वीकारा है, और होली हमारी अब भगवी होली के रूप में मनाने जा रहे हैं। Okay, you're calling this a Bhagwa saffron Holi. Tell me, as the person who has a very important role in this question, if this data is correct and the BJP gets the kind of comfortable majority the exit polls are projecting, who will be the next Chief Minister of Uttar Pradesh? The poll seems to suggest that Swami Prasad Maurya, your state unit chief, played an important role in consolidating the non-Yadav OBCs. Being a Kushwaha himself, the fact that the BJP wants to transform itself from being an upper caste and trader-dominated party, that seems to have worked in your favor. Is Swami Prasad Maurya the front runner to be the... Is Keshav Prasad Maurya the front runner to be the next Chief Minister of Uttar Pradesh? देखिए, कुल मिलाकर के आप रिजल्ट आएगा कल, पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा और हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। आप इसके भी नाम नहीं से उलझे, आप पार्टी का कार्यकर्ता, ये तो आप मान रहे हो कि सरकार हमारी बन रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ एग्जिट पोल का डेटा दिखा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अभी एग्जिट पोल का डेटा दिखा रहा हूँ। लेकिन आप ये मानेंगे कि केशव मौर्य को प्रोजेक्ट करने से आप लोगों को फायदा मिला नॉन यादव ओबीसीज को कंसोलिडेट करने में, कि पार्टी की जो इमेज थी एक बनिया पार्टी, अपर कास्ट पार्टी, वो चेंज हुई? देखिए, कुल मिलाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संगठन कौशल्य था, और हमने जो बूथ तक मैनेजमेंट किया, और उसमें पॉलिटिकल जितने मैनेजमेंट हमको चाहिए थे हम लोगों ने किए, और इसलिए हम पहले दिन से कॉन्फिडेंस थे। हम 1,47,000 बूथ तक पहुंचे। Take a look at this. In 2012, in the assembly elections, the BJP had only 47 seats. If you were to compare Lok Sabha trends and superimpose them on assembly data, then the BJP would have picked up 336 seats in the 2014 Lok Sabha elections. The October opinion poll by Access said that they will get 170 seats, 170 to 183. In December, Access said they'll get 206 to 216. Then that crashed in January.
17 to between 180 to 191. The reason it fell is because that's when Akhilesh and Rahul were coming together. In the end, though, Axis is saying they'll project 251 to 279. यानी कि काफी कांटे की लड़ाई थी ओम माथुर जी. अगर ये जनवरी का महीना का जो डेटा है वो दिखा रहा था कि मोमेंटम आपकी तरफ से फिसल रहा था, मोमेंटम अखिलेश की तरफ बढ़ रहा था, उसको रिवर्स करना, ये बाद में अगर ये डेटा सही निकलता है तो काफी स्टडी होगी कि वो रिवर्स कैसे किया गया मोमेंटम. और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर महीने कोई ना कोई नई योजनाएं गरीब कल्याण की लागू की है, ये अपना आप ही डाटा, और डाटे तो बढ़ते रहते हैं राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं, जो आपने लोकसभा में खड़े थे वही हम खड़े. और इसलिए मैं तो कहता हूं कि लोकसभा जैसी ही इस समय भी पूरे प्रदेश भर में थी. Leave it there. Om Mathur, thank you so much for joining us and sharing your thoughts on the exit poll data. That's the BJP's key organizational man, the General Secretary of the party in the state of Uttar Pradesh, joining us to share his thoughts on what may happen next. We'll take a break. We'll focus on the other big state, the state of Punjab, where the Axis My India exit poll is quite clear, but some of the other polls are not throwing up directionally as clear a picture. Some, in fact, are suggesting that the AAP could win. What happens if the AAP does win in Punjab? Where does that leave the Congress? Where does that leave national politics?